Good afternoon, all of you. Today we will start our next chapter, that is chapter number second, rational numbers, operation on rational numbers. Okay. So in previous lecture we seen about what is meant by rational number or what is the definition of rational number. Okay. So yes, we know that the definition of rational number, the number which is in the form of ratio, like that. What is rational word? Rational. This is rational number. Okay. In that word, which include ratio word, Okay. So meaning of this ratio, the number which is in the form of p by q, means the given number which is in the form of p by q. This is called as ratio, but q is not equal to 0. Q is not equal to 0. If we can take here q is equal to 0, then this is not ratio number. We get this number is 0. Okay. So therefore the number which is in the form of p by q, but q is not equal to 0. This is most important condition. Q is not equal to 0. Okay. Means जब आपका Q यहाँ पे 0 लेंगे तो ये टोटल नंबर क्या हो जाएगा 0. तो रेशियो फॉर्म में नंबर मिल सकता है? बिल्कुल नहीं मिलेगा. ओके. सो ये आपका डेफिनेशन है. ओके. Again, one more concept in rational number. The decimal expansion of rational number. The decimal expansion of rational number. For example, we can take 1 by 2. 1 by 2. Okay. So this is example. So 1 by 2 is equal to 0.5. 0.5. Okay. This is the decimal expansion of this rational number. We know that this is rational number. Why? Because the number which is in the form of p by q, that is 1 by 2. Okay. This is rational. And one more we can take here, that is 10 by 3. 10 by 3. Okay. This is next rational number which is in the form of p by q form, and q is not equal to 0. So like that we can write the decimal expansion of this one, 3.3333 coming continuously. Okay. Means simply we can write here 3.3 bar. 3.3 bar. Okay. This is also decimal expansion. This type of decimal expansion is called as rational number. Okay. इस टाइप के डेसिमल एक्सपेंशन को हम रैशनल नंबर बोल सकते हैं. ओके. क्यों बोल सकते हैं? क्योंकि इसमें दो टाइप्स आता है, जैसे कि आपने प्रीवियस इंट्रोडक्शन लेक्चर में देखा है. जब आपका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट होता है, अब टर्मिनेट का मीनिंग क्या है? स्टॉप हो जाता है. अप टू डैश इंक्रीज नहीं होता है या रिपीटिंग नहीं होता है. ओके. जब डैश लिखते तो उसका मीनिंग क्या है? अप टू डैश. आप बोलते अप टू इंफिनिटी. ओके. तो उस तरह से ये क्या होता है? अप टू इंफिनिटी तक इंक्रीज होता है. बट ये डेसिमल एक्सपेंशन आपका 5 के बाद इंक्रीज हो रहा है? नहीं है, यहीं पे स्टॉप हो रहा है. सो दिस इज कॉल्ड एज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन. दिस इज कॉल्ड एज टर्मिनेटिंग decimal expansion. Okay. Then it is called as rational number. Otherwise, second decimal expansion, if the decimal expansion is non-terminating, ये तो terminate हो रहा है. Other type क्या आ सकता है? Non-terminating. Here we can write non-terminating. Okay. अब ये डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग बोल रहा हूँ. क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि अप टू डैश वो इंक्रीज हो रहा है. ये डैश का मतलब क्या रहता है? अप टू डैश. ओके. अप टू इंफिनिटी. तो अप टू इंफिनिटी इंक्रीज ही होती जाएगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग. कहीं भी स्टॉप नहीं हो रहा है. दिस इज कॉल्ड एज नॉन टर्मिनेटिंग. बट रिपीटिंग दिस मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट. ओके. जब आपका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिपीट हो रहा है, मींस रिपीटिंग, इज कॉल्ड एज रैशनल नंबर. ओके. और तीसरा कौन सा आ सकता है? द डेसिमल एक्सपेंशन इज नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग. The decimal expansion is non-terminating, non-repeating, is called as irrational number. वो किस में जाता है? Irrational. आप कौन सा भी डेसिमल एक्सपेंशन ले लो, वो एक तो इरेशनल होगा, नहीं तो रैशनल होगा, या ये तीन कैटेगरी में वो डिवाइड होगा. ओके. जब आपका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट हो रहा है तो उसको हम रैशनल नंबर बोलेंगे. जब आपका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग नहीं है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग हो रहा है, सो दिस इज कॉल्ड एज rational number. If the decimal expansion in the form of non-terminating and non-repeating, this it is called as irrational number. Okay. तो ये है आपका इंट्रोडक्शन लेक्चर. इस तरह से हम रैशनल नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं. ओके. सो the number which is in the form of p by q but q is not equal to 0, and the decimal expansion of this ratio form
it is terminating or non-terminating repeating, so it is called as rational number. So this is the introduction part. Okay, now we will start our exercise or some operations on rational number. Okay, तो इसके ऊपर कुछ हम operations भी लेंगे rational number के ऊपर. सिंपल एक ऑपरेशन लेता हूं, जैसे कि हम एग्जांपल में भी वो एक्सप्लेन करने वाले, एग्जांपल में भी वो आएगा, बट फिर भी हम थोड़ा सा रैशनल नंबर के ऑपरेशंस लेंगे. ओके, अब रैशनल नंबर के ऑपरेशंस कौन से रहेंगे, जैसे कि अलजेब्रिक ऑपरेशन है या कंपैरिजन ऑपरेशन है. अब कंपैरिजन वर्ड आया तो आपको पता है कि एक जो चीज है दूसरे से कंपेयर की जाती है. ओके, मींस कंपेयर वन थिंग टू अदर. ओके, सो फॉर एग्जांपल जैसे कि हम कंपैरिजन कर रहे हैं, लाइक दैट वी कैन राइट a by b is greater than c by d. मैं क्या लिख रहा हूं यहाँ पे, a by b is greater than c by d. यहाँ पे कंपैरिजन हो रहा है कि a by b किससे ज्यादा है, c by d से ज्यादा है. इसका मीनिंग क्या रहता है, ज्यादा है. ओके, ये दो जो ये आ रहे हैं वो बड़ा नंबर रहता है. ओके, सो a by b is greater than c by d. Again we can write this one, then we can write that is ad is greater than cb. ये हमें एग्जांपल में यूज करना है, शॉर्टकट ट्रिक से इजीली हमें समझना है. ओके, तो AD इज ग्रेटर देन CB. अब ऐसे क्यों लिखूंगा मैं, ओके, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे नंबर लिख रहा हूँ, लाइक दैट वी कैन राइट 3/2 इज ग्रेटर देन 1/2. यस, लॉजिकली आपको पता है 3/2 बोले तो 1.5 इज ग्रेटर देन 0.5. ओके, तो ये तो सही है, बट ये प्रॉपर्टी भी आपको फॉलो होना है, AD इज ग्रेटर देन CD. अब चेक करूंगा, अब कैसे चेक होता है, देखो मैं क्या कर रहा हूं, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन बोले तो 2 into 3 6 इज ग्रेटर देन 2 into 1 2, विच इज ग्रेटर, दिस वन इज ग्रेटर. ओके, तो साइन एज इट इज रहता है. तो ये प्रॉपर्टी हमें ग्रेटेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर, रैशनल नंबर निकालने के लिए यूज करना है. ओके, सो दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी. अगेन वी कैन राइट अदर opposite method or opposite process, like that we can write if a by b is less than c by d, then we can write then AD is less than BC. AD is less than BC. Okay, this is same as it is. Then again we can write number third, if A by B is equal to C by D, then we can write AD is equal to BC. क्या लिख सकते हैं, AD is equal to BC. तो जो भी साइन है आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने के बाद एज इट इज रह रहा है, चेंज नहीं हो रहा है. ओके, ये भी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, ये भी आपको ध्यान में रखना है. ओके, देन सम अलजेब्रिक ऑपरेशंस ऑन रैशनल नंबर. अलजेब्रिक ऑपरेशंस ऑन रैशनल नंबर, दिस इज कंपैरिजन ऑपरेशंस, देन अलजेब्रिक ऑपरेशंस. सो हियर वी कैन राइट अलजेब्रिक ऑपरेशंस. Yes, we know that algebraic operation, that is addition of rational number, subtraction of rational number, division of rational number, and multiplication of rational number. Okay, so first one here we can write algebraic operation, that is addition of rational number. Okay, that is operation number first, addition of rational number. Okay, so how to add two rational number means, for example we can write a by b plus c by d, a by b plus c by d. with example we can take here. अब हर एक एग्जांपल लेके मैं सॉल्व करता हूं, 3/2 ही लेंगे प्लस 1/2 लेता हूं. ओके, सो ये लॉजिक यहाँ पे हम चेंज करेंगे, डिनोमिनेटर 3 करेंगे. ओके, 3 क्यों करना है, क्योंकि b and d डिफरेंट नंबर है. सो द गिवन रैशनल नंबर इन द फॉर्म ऑफ a by b plus c by d, देन हाउ टू सॉल्व दिस वन, देयर आर टू मेथड्स. दो मेथड हो सकते हैं इसके लिए. दो मेथड कौन से, एक तो आप डिनोमिनेटर सेम करो, मेक डिनोमिनेटर सेम, अदरवाइज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. ओके, मींस हाउ टू सॉल्व, फर्स्ट योर मेथड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. सो लाइक दैट वी कैन सॉल्व a into d, that is AD, plus b into c, that is BC, divided by b plus d. ये एक आपका मेथड है एडिशन के लिए. ओके, तो इसके लिए लॉजिक क्या यूज करेंगे, 3 into 3, that is 9, plus 2 into 1 2, divided by 3 into 2 6, so we get here 11/6. ये लॉजिक हम यूज कर सकते हैं. अदर मेथड कौन सा है, मेक डिनोमिनेटर सेम. सो हियर वी कैन राइट 3/2 plus 1/3. फर्स्ट टू मेक डिनोमिनेटर सेम, सो लाइक दैट वी कैन राइट 2/2 adjustment, here 3/3 adjustment. Our denominator is same. Okay, so here we can write, that is 3 3s are 9/6, here 2 3s are 6, then 1 into 2, that is 2, and 3 2s are 6. If denominator is same, then directly we can add numerator. So we get 9 plus 2 divided by common denominator, we get 11/6. Okay.
अब आप लोग बोलेंगे सर ये तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड बहुत इजी है, ये क्यों यूज करना है? ओके, बट अब आपको ये लॉजिकली मैं समझा देता हूँ कि ये भी इंपॉर्टेंट मेथड है, ये कब यूज करना ये भी आपको समझा देता हूँ। ओके, अब समझो फॉर एग्जाम्पल, आपका एग्जाम्पल इस तरह से 13 बाय, ओके, कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, जो भी बड़ा नंबर है उस तरह से आप एग्जाम्पल ले सकते हैं। ओके, जो भी बड़ा नंबर है, तो यहाँ पे मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ 13 by 14 plus then here we can write that is 17 by 56। ओके, 56 या 70 लेंगे, 70। ओके, 17 by 17। अब कैसे सॉल्व करना है? एक तो आपके पास मेथड है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, दूसरा है डिनोमिनेटर सेम करके। ओके, तो प्रॉपर मेथड इसके लिए कौन सा यूज करना है ये हमें डिसाइड करना है। ओके, सो अब ये एग्जांपल मैं सॉल्व करता हूं आपके, ये एक शॉर्टकट मेथड से, यहाँ पे कंपलसरी यही मेथड यूज करना पड़ेगा, फर्स्ट टू मेक डिनोमिनेटर एंड देन सॉल्व इट। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के लिए गए तो टाइम ज्यादा जाएगा। ओके, तो इसमें क्या देखूंगा मैं, पहले मेरा टारगेट रहेगा कि ये जो डिनोमिनेटर यहाँ पे ला सकता हूँ क्या, मेरा टारगेट ये रहेगा। ओके, तो ये डिनोमिनेटर यहाँ पे लाने का मैं ट्राई करूंगा। ओके, तो मैं यहाँ पे एडजस्टमेंट देखो कैसे कर रहा हूँ, 13 by 14 प्लस 17 by 70। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे ये डिनोमिनेटर लाना है, तो मुझे यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब मेरा डिनोमिनेटर वो आ जाता है। ओके, यहाँ पे मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे मुझे 5 से मल्टीप्लाई करना है, क्यों? क्योंकि दिस इज एडजस्टमेंट, 5 5 गेट कैंसल, वी गेट प्रीवियस आंसर, प्रीवियस क्वेश्चंस। ओके, प्रीवियस स्टेप। ओके, तो ये कंपलसरी कैंसल होना है, क्योंकि हम जैसे कि आपको इक्वेशन का रूल पता है, वी कैन डिवाइड सेम नंबर ऑन बोथ साइड, वी कैन मल्टीप्लाई सेम नंबर ऑन बोथ साइड, मींस किसी को कुछ ज्यादा नहीं दे सकते। ओके, उस तरह से इसको 5 दिया तो इसको भी 5 आपको कंपलसरी देना है। देन फाइनल वी गेट हियर, अब ये तो कैलकुलेशन कर सकते हैं। ओके, ये कैलकुलेशन करने के बाद आपको डायरेक्टली आंसर मिल सकता है। ओके, तो कैलकुलेशन क्या मिलेगा? सो वी गेट हियर दैट इज 65 डिवाइडेड बाय 70, वी नो दैट 14 5s are 70 plus 17 by 70, so we know that rule, if denominator is same then directly we can add a numerator, so we get 65 plus 17 upon common denominator 70, then addition of this 7 plus 5 that is 12, 1 carry, then 6 plus 1 7 plus 1 8, okay, divided by 70। okay, then again reduce कर सकते हैं हम 41 by 35, this is final answer, 41 by 35। अब ये देखो, ये मेथड हमें कंपलसरी यहाँ पे यूज करना है, बट जब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने जाएंगे तो हर एक का मल्टीप्लिकेशन करना, देन उसको रिड्यूस करते करते 41 by 35 आंसर आना, तो ये थोड़ा सा इसके लिए डिफिकल्ट रहेगा। ओके, तो इसलिए हमें प्रॉपर मेथड इस टाइप के एग्जाम्पल के लिए कौन सा रहेगा? फर्स्ट टू मेक डिनोमिनेटर सेम, इस टाइप के है, सिंगल नंबर 1 है न्यूमरेटर की जगह पे, तो आप ये मेथड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से भी कर सकते हैं। ओके, तो ये आपको चूज करना है विच वन बी द मेथड इजी फॉर एडिशन ऑफ रैशनल नंबर। ओके, तो इस तरह से दोनों मेथड बताया। सिमिलरली फॉर subtraction of rational number, okay, means simply you can take here negative sign, here we can take negative, here we can take negative, we get answer। ओके, वही चेंज है, तो यहाँ पे मैं प्लस कट करके माइनस ले लूंगा, यहाँ पे प्लस कट करके माइनस ले लूंगा, यहाँ पे प्लस कट करके माइनस होगा, तो आपको क्या मिलेगा? सब्सट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर मिलेगा, subtraction of rational number। okay, so this is the operation number second। same as it is, यहाँ पे भी आपको क्या करना पड़ेगा? माइनस, यहाँ पे माइनस लेना है, देन आंसर क्या मिलेगा? 7/6, आंसर क्या मिलेगा? 7/6। ओके, तो अदर एग्जांपल भी आपको उस तरह से ही सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये आपका सब्सट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर, दोनों भी सेम है। The next one, multiplication of rational number, next operation, that is multiplication of rational number, multiplication of rational number। so number third, multiplication or product, multiplication of rational number, okay, this is next operation। okay, so how to multiply two rational number? टू रैशनल नंबर कैसे मल्टीप्लाई करना है? सो लाइक दैट वी कैन राइट a by b into c by d। जैसे कि आपको मल्टीप्लिकेशन रूल है, वैसे हम क्या करते हैं? डायरेक्ट न्यूमरेटर इंटू न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर इंटू डिनोमिनेटर। मींस क्या करना है? न्यूमरेटर जो भी है a इंटू सी करना है,
न्यूमरेटर का मल्टीप्लीकेशन एंड डिनोमिनेटर का मल्टीप्लीकेशन b इंटू डी, दिस इज फाइनल आंसर है। ओके, फॉर एग्जाम्पल कैसे लेंगे, फॉर एग्जाम्पल 1/2 इंटू 3/2, तो क्या करेंगे 1 इंटू 3 3, 2 इंटू 2 4, दिस इज फाइनल आंसर। डायरेक्ट हम मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं, डायरेक्ट प्रोसेस, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना। ओके, इन दी केस ऐसे भी एग्जांपल आते हैं, फॉर एग्जांपल 3/2 इनटू दैट इज 5/4 या 4/5, इस तरह से एग्जांपल आ सकते हैं 4/5। तो इसमें आप डायरेक्ट भी मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं या यहाँ पे रिड्यूस किया तो भी चलेगा या आंसर आने के बाद किया तो भी चलेगा। रिड्यूस क्या करेंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ओके, क्यों, क्योंकि ये दोनों डिवाइड में दिख रहे हैं। सो व्हाट इज फाइनल आंसर, 3 2 जा 6 एंड 1 इंटू 5 दैट इज 5, ओके। बट डायरेक्ट कैलकुलेशन किया तो भी आपको आंसर वही मिलने वाला है, यहाँ पे रिड्यूस किया तो भी आपको आंसर वही मिलने वाला है। ओके, तो कौन सा भी आप लॉजिक यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ओके, then next one operation, that is division of rational number. Next one, division of rational number. Okay, here we can write next operation, division of rational number. Okay, so how to divide two rational numbers? So first here we can write a by b divided by c by d. Okay, a by b divided by c by d. Okay, so here we can write a by b. How to solve this one? Change divide sign into multiplication sign and take reciprocal of second number. What is meant by reciprocal? ये एक वर्ड आया रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल बोले तो समझो c बाई डी है तो उसका रेसिप्रोकल क्या आएगा, उसको इंटरचेंज करना है, मीन c बाई डी है तो यहाँ पे लिखना है d बाई सी। ओके, 1/2 है तो इसका रेसिप्रोकल क्या आएगा, 2/1। ये डिनोमिनेटर की जगह पे तो उसको न्यूमरेटर पे लेना है, ये न्यूमरेटर की जगह पे तो उसको डिनोमिनेटर के देना है जगह पे लेना है। ओके, सो दिस इज द रेसिप्रोकल ऑफ 1/2, दिस इज द रेसिप्रोकल ऑफ c by d। ओके, सो व्हाट इज द रेसिप्रोकल ऑफ c by d, दैट इज d by c, d by c, दिस इज फाइनल आंसर। यहाँ पे डिवाइड साइन आपको चेंज करना है मल्टीप्लिकेशन में, और इसका रेसिप्रोकल क्या होता है, d by सेकंड नंबर का रेसिप्रोकल d by c। तो आंसर क्या मिलेगा, प्रोडक्ट रूल क्या है, डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन, a into d ad and b into c bc, दिस इज फाइनल आंसर। ओके, अब एग्जांपल लेंगे, लाइक दैट वी कैन राइट हियर 1/2 डिवाइडेड बाय 1/4, इस तरह से एग्जांपल ले रहा हूं, 1/2 डिवाइडेड बाय 1/4। सो व्हाट इज प्रोसीजर, राइट डाउन फर्स्ट नंबर एज इट इज, कन्वर्ट साइन इनटू डिवाइड साइन इनटू मल्टीप्लिकेशन साइन एंड टेक रेसिप्रोकल ऑफ सेकंड नंबर दैट इज 4/1। 1/4 का रेसिप्रोकल क्या आएगा, 4/1। ओके, अब ये सॉल्व करना है, यहाँ पे मैं रिड्यूस कर सकता हूँ, 2 1 जा 2 2 जा, देन फाइनल 1 into 2 2, 1 into 1 1, मींस फाइनल आंसर 2, 2 विद द फाइनल आंसर। ओके, इस तरह से आप उसका आंसर निकाल सकते हैं। ये क्या है, आपका डिवीजन ऑपरेशन है। ओके, तो ये भी आपको ऑपरेशन ध्यान में रखेगा। ओके, नाउ वी विल स्टार्ट आवर एक्सरसाइज, एक्सरसाइज नंबर 2.1। ओके, now exercise number 2.1, question number first. What is question? In square bracket 5/7 into 28/15 into 9/8 into 3. Okay, solve this example. What is the answer of this question? Okay, so first ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले जैसे कि आपको बोला है कि दिया हुआ एग्जाम्पल प्रोडक्ट फॉर्म में है। ओके, मींस 5/7 है या 28/7 है, दोनों क्या रहेंगे, सेम ही रहेंगे, डिवाइड में ही है। डिनोमिनेटर पे नंबर है, ये न्यूमरेटर पे तो हम ये डिवाइड कर सकते हैं, ये न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर हम कट कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। ओके, क्योंकि वो फॉर्म किस में रहता है, डिवाइड फॉर्म में रहता है। तो पहले हम ये एग्जाम्पल के लिए क्या करेंगे, कट करेंगे, जो भी नंबर रिड्यूस हो सकते हैं वो रिड्यूस करेंगे। सो वी नो दैट 7 1 जा 7 4 जा 28, 7 1 जा 7 4 जा 28, इस तरह से रिड्यूस करेंगे। देन 5 1 जा 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, ये नंबर कट हुआ, सिर्फ क्या मिला यहाँ से, 4/3 मिला। ओके, देन यहाँ पे भी हम थोड़ा सा रिड्यूस करेंगे, सो लाइक दैट वी कैन राइट 3 1 जा एंड हियर 3 गेट कैंसल, या इसको भी रिड्यूस कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, 3 3 गेट cancel, then 4 1 जा 4 2 जा 4 2 जा। Okay, so what is remaining in that bracket, this one 9 and this one 2 only, so like that we can write this example 9/2, ब्रैकेट में क्या बाकी है आपका 9 and 9/2, डिवाइड में क्या है 9/2। Okay, we know that rule, if you can divide same number so we get answer 1। Okay, सेम नंबर्स है तो आंसर क्या मिलेगा आपको, कंपलसरी 1 मिलेगा। ओके, तो आंसर क्या मिलता है इसका, 1 मिलेगा। ओके,
So it is option number D be the here correct. Option number D be the correct option. Okay. तो इस तरह से आपको ये लॉजिक पता रहना है. हमारा पहला टारगेट, कभी भी एग्जांपल इस टाइप का एग्जांपल देखने के बाद हम रिडक्शन कर सकते हैं. पहला टारगेट रहेगा डिनोमिनेटर देखना, न्यूमरेटर देखना, कहीं पे तो कैंसिल होता है क्या, तो उसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना आपका आंसर इजी जाएगा. नहीं तो कभी कभी आपका क्वेश्चन इंक्रीज हो जाता है, जैसे कि आप मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं, पूरा मल्टीप्लीकेशन करेंगे, डिवाइड करेंगे, बाद में आपको समझ में ही नहीं आएगा कि कैसे रिड्यूस करना, कैसे डिवाइड करना. ओके, यहाँ पे गलती होता है. तो सबसे इंपॉर्टेंट मेथड इसमें क्या है कि वो एक्सप्रेशन या ये रैशनल नंबर आपको रिड्यूस करना है. ओके, इस तरह से आप इजीली आंसर निकाल सकते हैं विद इन 20 सेकेंड्स में सिर्फ निकाल सकते हैं. ओके, ज्यादातर, बट प्रैक्टिस है तो 5 सेकेंड्स काफी है. ओके, ज्यादा प्रैक्टिस की है तो. देन क्वेश्चन नंबर सेकेंड, if the rational number minus 3 by 34, minus 2 by 17, minus 5 by 51, minus 4 by 68 are arranged in the ascending order, which rational number will be in the second last position. second last position का rational number हमें निकालना है. बट कब निकाल सकते हैं, जब इसको ascending order से अरेंज करेंगे तब. ओके, अब कंसेप्ट आपको समझना है. ओके, कंसेप्ट समझ के हम सॉल्व करेंगे. इजी लॉजिक है. हम क्या करेंगे पहले, जैसे कि आपको नंबर लाइन पता है, यहाँ पे समझो नंबर लाइन है, यहाँ पे आपका 0 रहता है, 1 रहता है, 2 रहता है. ओके, प्रीवियस टाइम हमने देखा है -1 है, -2 है, -3 है, ये नंबर से. ओके, सो विच इज ग्रेटर नंबर, इसमें निगेटिव में ग्रेटर नंबर कौन सा रहता है, 1 रहता है. यहाँ पे कौन सा रहता है, -2, देन उसके बाद -3. जैसे आगे जाएगा, जैसे नंबर इंक्रीज होगा, वैसे आपका निगेटिव नंबर लेस होते चलता है, कम होते चलता है. ओके, तो ये ध्यान में रखना है. इसमें अपोजिट है. तो ये लॉजिक आपको समझ में आए तो ये एग्जांपल आप सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, और एक लॉजिक ध्यान में रखना है. समझो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 1/2. 1/2 का आंसर क्या है, 0.5. बट डिनोमिनेटर पे यहाँ पे डिफरेंस कितना है, 1. मैं इंक्रीज करता हूँ डिनोमिनेटर का डिफरेंस. यहाँ पे डिफरेंस कितना है, डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर में 2 का डिफरेंस है. तो आंसर देखो कैसे आता है. सो लाइक दैट वी कैन राइट 0 पॉइंट, यस, यहाँ पे क्या मिलेगा 10. सो 3 3 9. तो आंसर क्या मिल रहा है, 0.33, मीन 0.3 कंसीडर करेंगे. तो जब हमारा डिफरेंस इंक्रीज हो रहा है, तो आंसर रिडक्ट हो रहा है. मीन जितना आपका ज्यादा डिनोमिनेटर है उतना आंसर कम आएगा. ओके, न्यूमरेटर ज्यादा है तो आंसर ज्यादा आएगा. तो जितना आपका ये डिफरेंस है उस हिसाब से आपका आंसर आएगा. जितना ज्यादा डिनोमिनेटर है उतना आंसर आपका कम आएगा. ओके, तो इस लॉजिक में अपोजिट रहेगा. क्यों अपोजिट रहेगा, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं माइनस लेता हूँ, यहाँ पे माइनस लेता हूँ. अपोजिट देखो, अब मेरा आंसर क्या मिलेगा, जस्ट यहाँ पे माइनस आएगा, मीन्स आंसर मिलेगा -0.5, यहाँ पे -0.5. ये इसलिए समझा रहा हूँ कि बाकी एग्जांपल इसके बेसिस रहे तो भी आप सॉल्व कर सकते हैं. ओके, अब मेरा आंसर देखो, यहाँ पे मुझे मिल रहा है -0.5, यहाँ पे -0.3. विच इज ग्रेटर, कौन सा नंबर ग्रेटर है. ओके, पहले तो आप कौन सा बोले थे, 1/2 बोले थे, बट इसमें कौन सा ग्रेटर है. अब आप नंबर लाइन पे लिख सकते हैं 0, पहले कौन सा आएगा, -0.3, दूसरे बार कौन सा आएगा, -0.5. तो ग्रेटर कौन सा आएगा, जो 0 के नजदीक है वो. सो दिस नंबर इज ग्रेटर. मीन्स -0.3 किसका आंसर है, -1/3. सो जब माइनस नंबर आता है तो अपोजिट में -3 ग्रेटर आता है -1/2 से. ओके, ये लॉजिक समझना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है. मीन्स इसका मीनिंग क्या है कि निगेटिव नंबर में आपके डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर में डिफरेंस ज्यादा है तो वो ग्रेटर आता है. ओके, बट पॉजिटिव नंबर में आपका डिफरेंस ज्यादा है तो वो लेस नंबर आता है. ये अपोजिट आपको देखना है, ये कंसेप्ट समझना है. वही कंसेप्ट से आगे जाएंगे हम. मैं क्या बोला अभी, निगेटिव नंबर में डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर का डिफरेंस ज्यादा है तो वो ग्रेटर रहता है. ओके, निगेटिव में. तो यहाँ पे मैं देखूंगा, यहाँ पे आपने डिफरेंस कैलकुलेट किया तो 31 आता है, निगेटिव नंबर है. यहाँ पे डिफरेंस कैलकुलेट किया तो 15 आता है. यहाँ पे डिफरेंस कैलकुलेट किया तो ये आता है 46. यहाँ पे डिफरेंस कैलकुलेट किया तो ये आता है 64. तो अभी लॉजिकली मैं बताया कि जितना आपका डिफरेंस ज्यादा है निगेटिव में, वो नंबर फर्स्ट आता है. ओके, जितना ज्यादा है, ज्यादा किसका है, ये नंबर का है, 64 डिफरेंस है तो ये फर्स्ट आएगा, वो ग्रेटर रहेगा. तो असेंडिंग ऑर्डर बोले तो असेंडिंग ऑर्डर का मीनिंग क्या है, आप सीढ़ियां उतर रहे हैं ऊपर से, मींस हाईएस्ट नंबर से आप नीचे जा रहे हैं. सो विच वन बी द हाईएस्ट नंबर हियर, -4/68. दिस इज हाईएस्ट.
ओके, उसके लिए कौन सा आएगा? अब डिफरेंस किसका ज्यादा है? ये नंबर का, सेकेंड लास्ट नंबर का। ओके, कितना है? 46, सो सेकेंड आएगा -5/51। ओके, देन नेक्स्ट वन, नेक्स्ट लेस कौन सा आएगा? डिफरेंस किसका ज्यादा है? इसका है, तो ये आएगा -3/34। एंड लास्ट वन कौन सा मिलेगा? -2/17, -2/17। ये लॉजिक समझना है, आप विद इन सेकंड में आंसर बोलेंगे, विद इन। ये आपको सब समझ में आया, ये बताने के लिए टाइम लगा, लेकिन आपको ये पता है पहले से ही कि निगेटिव नंबर में डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर का डिफरेंस ज्यादा है तो ग्रेटेस्ट नंबर आता है। ये आपको इसमें क्वेश्चन में पूछा है, टू फाइंड आउट द ग्रेटेस्ट नंबर, डायरेक्ट बताऊंगा यस दिस इज ग्रेटेस्ट नंबर। टू फाइंड आउट द स्मॉलेस्ट नंबर, दिस इज स्मॉलेस्ट नंबर, डायरेक्ट मैं बता सकता हूं। ऐसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं, लेकिन ये लॉजिक आपको ध्यान में रखना है। ओके, तो हमारा क्वेश्चन क्या है? इफ द रैशनल नंबर, दिस बी द रैशनल नंबर -3/34, -2/17, -5/51, -4/68 आर अरेंज्ड इन द असेंडिंग ऑर्डर। ये अरेंज किए असेंडिंग ऑर्डर से। विच रैशनल नंबर विल बी इन द सेकेंड लास्ट पोजीशन? तो कौन सा रैशनल नंबर सेकेंड लास्ट पोजीशन पे आ सकता है? सेकेंड लास्ट बोले तो लास्ट के पहले का। कौन सा है लास्ट के पहले का? दिस इज सेकेंड लास्ट पोजीशन। कौन सा आएगा? -3/34। आंसर क्या रहेगा हमारा? -3/34। सो सी बी द करेक्ट ऑप्शन, सी बी द करेक्ट ऑप्शन। ओके, तो ये लॉजिक ध्यान में रखना है। विद इन सेकेंड आप कौन सा भी इस टाइप का क्वेश्चन आने दो, आप आंसर निकाल सकते हैं। ओके, दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर सेकेंड। ओके, आप आई होप आपको समझ में आया होगा, कंसेप्ट ध्यान में रख के आप सॉल्व कर सकते हैं। नाउ वी विल टेक नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड। I will rub these two questions first. Okay, this is ascending order. This is following rational number. ओके, अभी तो आपने देखा कि जैसे कि दो सब नंबर्स निगेटिव है तो हम वो लॉजिक यूज कर सकते हैं, सब नंबर्स पॉजिटिव है तो हम ग्रेटेस्ट स्मॉलेस्ट नंबर इजीली निकाल सकते हैं। बट जब आपको रैशनल नंबर, ये सेकंड टाइप है, डिफरेंट टाइप्स के एग्जांपल ले रहा हूं मैं। ओके, सेकंड टाइप, बट जब मिक्सिंग आएगा, कुछ निगेटिव है कुछ पॉजिटिव है, तो कैसे निकालना, ये भी सबसे इजी है। ओके, इसके लिए ट्रिक्स देखो। हियर वी कैन राइट नंबर थर्ड आंसर। ओके, क्या नंबर से आपका? 4/17, okay, then -7/19, then -3/5। ठीक है, सो व्हाट इज द असेंडिंग ऑर्डर? असेंडिंग ऑर्डर बोले तो आपको सीढ़ियां उतरना है, मींस हाईएस्ट नंबर से चलना है। अब कोई भी बता सकता है कि जो भी पॉजिटिव नंबर, दो नेगेटिव और एक पॉजिटिव, तो हाईएस्ट नंबर कौन सा आएगा? दिस वन बी हाईएस्ट नंबर। तो यहाँ पे तो मेरा एक पोजीशन फिलअप हुआ, 14/17 मेरा पहला आएगा असेंडिंग में। बट ये दोनों में डिफरेंस निकालना, ये भी विद इन सेकंड में आंसर बता सकता हूं। अभी आपने एक प्रॉपर्टी देखा, A/B इज ग्रेटर देन C/D, C/D, ये प्रॉपर्टी से आप लिखते हैं, देन वी कैन राइट दैट इज AD इज ग्रेटर देन CB। ओके, बट मैं चेक करूंगा, कैसे चेक करूंगा? आपको पता है इन दोनों में सब समझो, मैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करता हूं तो मेरा डिनोमिनेटर क्या हो जाता है? सेम आता है, कॉमन आता है। तो मैं वही लॉजिक यूज करूंगा। 5 इंटू -7 कितना आएगा? -35 आएगा। ओके, देन 19 इंटू -3, 19 इंटू -3 करना है। ओके, सो 19 इंटू -3 कितना आता है? 58 आता है। ओके, सो 19 इंटू -3, सो हियर वी कैन राइट -58। हमें क्या निकालना है? ग्रेटर नंबर। ग्रेटर नंबर कौन सा रहता है? जो स्मॉलेस्ट रहता है, तो ये ग्रेटर नंबर हुआ। ओके, किसका आंसर आ रहा है? पहले का, 5 इंटू -7, सो दिस इज ग्रेटर। तो लॉजिक देखो कैसे मिलेगा? दिस वन बी सेकेंड ग्रेटर, -7/19, एंड दिस वन लास्ट, दैट इज -3/5। ये लॉजिक पता है तो आपको ये लिखने की भी जरूरत नहीं है, यहाँ पे दिख रहा है 5 इंटू 7 -35, 19 इंटू 3 दैट इज 58। ओके, तो ग्रेटर कौन सा है निगेटिव में? जो स्मॉलेस्ट रहता है वो ग्रेटर रहता है, तो सेकंड नंबर ग्रेटर है। ये हो गया असेंडिंग ऑर्डर। ओके, तो असेंडिंग ऑर्डर हमें चेक करना है। ऑप्शन नंबर में 14/17 है, नहीं है, दिस इज कट, दिस वन आल्सो रॉन्ग, दिस वन चेक, दिस वन 4/17 -7/9, sorry 9 ना, दिस वन 1 minute,
19, yes, 19, 19, here 19, okay, then here also 19, this one plus, okay, then check 4 by 17, then minus 7 by 19, and then minus 3 by 5, this is correct option, okay, ये रहेगा आपका करेक्ट ऑप्शन, ओके, तो इस तरह से आंसर मिला। और एक ट्रिक्स बताता हूं इसमें, इस स्पेशल एग्जांपल में ऐसे ट्रिक्स नहीं आते, इस तरह से ऑप्शन नहीं आते, यहाँ पे तो डायरेक्ट आंसर मिल रहा है आपको। कैसे आंसर मिल रहा है आपको, बोला है असेंडिंग ऑर्डर बोला है, ओके, कंपैरिजन इन दोनों में रहेगा, तो आपको स्टार्टिंग में पहला नंबर कौन सा आना है, पॉजिटिव नंबर आना है 4 by 17, दूसरा ऑप्शन ही नहीं है 4 by 17 वाला, तो डायरेक्ट आंसर मिल रहा है सी, ओके, बट ऐसे टाइप के ऑप्शन बहुत कम आते हैं, यहाँ पे 4 by 17 आपको दो ऑप्शन दिए जाएंगे, देन आपको चेक करना है, ठीक है। तो इस टाइप के एग्जांपल में तो डायरेक्ट आंसर मिला है 4 by 17, लेकिन कंसेप्ट क्लियर होने के लिए मैंने ये भी सॉल्व करके दिया, ठीक है, तो ये भी आंसर आपको मिल सकता है बाय यूजिंग ट्रिक्स, ओके। सो ऑप्शन नंबर सी भी द करेक्ट। नाउ वी विल टेक क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे हम। Yes, what is question number 4? First I will read question number 4. How many times should 5 by 8 be added to 5 by 8 so that the sum is 5? Okay, क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन के हिसाब से आप मैथमेटिकल एक्सप्रेशन चेंज करो। कभी भी ध्यान में रखना है, कोई भी थ्योरेटिकल प्रॉब्लम है तो आपको क्वेश्चन से उसको मैथमेटिकल लॉजिक में कन्वर्ट करना है, ओके। क्वेश्चन है हाउ मेनी टाइम्स शुड 5 by 8 बी एडेड टू 5 by 8? पता नहीं है कितने टाइम्स ऐड करना पड़ेगा 5 by 8, किसमें 5 by 8 में, तब आपका आंसर 5 मिल रहा है। मुझे पता नहीं है तो मैं कंसीडर करूंगा x टाइम्स, मैं क्या कंसीडर करूंगा, कितना टाइम्स ऐड करूंगा x टाइम्स, हियर वी कैन राइट x टाइम्स, x टाइम्स में 5 by 8 उसमें ऐड कर रहा हूं, किसमें 5 by 8 में, तो आंसर मिल रहा है मुझे 5, ओके। तो इसका मीनिंग क्या रहता है, x टाइम्स 5 by 8 वी कैन ऐड इन 5 by 8, सो वी गेट आंसर 5, हो गया आंसर। तो x टाइम्स बोले तो जस्ट x से यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, तो 5 into x, 5 into x that is 5x by 8 plus 5 by 8 is equal to 5, इस तरह से आंसर मिलेगा, ओके। हमें क्या निकालना है, x निकालना है, डिनोमिनेटर सेम है, इफ डिनोमिनेटर इज सेम देयरफॉर न्यूमरेटर एडिशन ऑफ न्यूमरेटर, सो लाइक दैट वी कैन राइट 5x plus 5 divided by common denominator here as it is 5, then divide it get multiply, so we get here 5x plus 5 is equal to 8 5s are 40 here, 8 5s are 40, again we can write this one 5x plus 5 it get minus here, so we can write 5x is equal to 40 minus 5 plus it get minus here, then final that is 5x is equal to 40 minus 5 that is 35, okay, then 5 is multiplied get divide, so x is equal to 35 divided by 5, then we know that 5 ones are 5 7s are 35, so we get x is equal to 7, कितना टाइम्स ऐड करना पड़ेगा आपको, 7 टाइम्स ऐड करना पड़ेगा, तब आपको आंसर क्या मिलेगा, 5 मिलेगा, तब आंसर क्या मिलेगा 5, ओके। एक मेथड नंबर 1 हो गया। सेकंड मेथड आपको पता है जैसे कि 1/2 है, उसमें मैं समझो 1 टाइम 1/2 ऐड किया तो आंसर मिलता है 1, आंसर क्या मिलता है 1, ओके। तो ये लॉजिक देखो 5 by 8 है, तो 1 टाइम आपने 5 by 8 डिनोमिनेटर से देखो कितना टाइम किया, 1 टाइम, कितना बच गया 7 टाइम, जब मैं 7 टाइम ऐड करूंगा डिनोमिनेटर पे तब मेरा वो 8 टाइम्स होगा, तो जो मेरा डिनोमिनेटर उतना टाइम्स 5 by 8 ऐड हो रहा है, तो ऑटोमेटिकली आपका आंसर क्या मिलेगा 5 मिलेगा, ओके। तो यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर कितना टाइम्स है, 2 टाइम्स है, तो ये 1/2 कितना टाइम्स ऐड किया आपने, 2 टाइम्स, उसका आंसर मिलेगा 1। कौन सा भी एग्जांपल ले लो, समझो 1/9 है, आपको कितना टाइम्स ऐड करना है, 9 टाइम्स ऐड करना है, 9 टाइम्स कैसे देखो 1/9 plus 1/9 plus 1/9 plus 1/9 plus 1/9 plus 1/9, लॉजिक समझने के लिए लिख रहा हूं, 4 then 7 then again 1/9 plus 1/9, कितना टाइम्स ऐड किया मैंने 9 टाइम्स, ओके, तब मुझे आंसर 1 मिलेगा, क्योंकि डिनोमिनेटर 9 है ना आपका, तो 9 टाइम्स ऐड करना पड़ेगा, ओके। ये सिंपल लॉजिक है, उससे भी आप आंसर निकाल सकते हैं। अब देखो चेक करो डिनोमिनेटर सबका सेम है ना, तो सबका सेम है तो डिनोमिनेटर सबके लिए कॉमन रहेगा, कितना टाइम्स 1 आ रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 टाइम्स, 9 टाइम्स 1 को ऐड किया तो कितना मिलेगा आंसर 9 ही मिलेगा, तो आंसर कितना मिलता है 1, दिस इज लॉजिक। इस तरह से आप आंसर निकाल सकते हैं, ओके। सो ये आपका फाइनल आंसर होगा, दिस इज द फाइनल आंसर, ओके।
Now we will start next exercise.